friends, welcome to this insightful discussions podcast episode with Sri M. Nagarajan sir, IAS officer 2009 batch. So he is a visionary leader and entrepreneur in government. So I welcome you sir for this podcast and let's dive into these discussions. So sir, my first question to you, you are playing a pivotal role into the startup ecosystem. So recently you also did the Mehsana startup ecosystem and it has highlighted across the Gujarat. And sir, what's your inputs in it? So fundamentally, if you ask me why startup and why youth, this is the question that we have to start with. Startup is the best way today to empower the youth to realize their potential. If we are not able to bet on the ideas of our youth, we will not be able to build a startup nation. And a startup nation can bring growth and development to all the people. So startup and youth are most important themes for the rising India. When we talk about India becoming a global leader, it is the power of the youth that will power this journey. We all know that by 2030, India will become the most populous nation with youth. The highest youth population, which is a demographic dividend with us, it should be harnessed properly. Otherwise, it may become a demographic liability also. And all these youth who are now in schools and colleges, we can harness their energy by driving their inner potential. Research has shown that entrepreneurship develops the internal locus of control of the person. So when we are exposing youth to entrepreneurship in a very young age, he is able to work on his own skill set, he is able to realize his own strengths and weaknesses, and he is able to bring his best to the society. So ultimately, as a society, it is our responsibility to help our youth bring out their potential. Among all the means that is available, entrepreneurship and startup provides the easiest, fastest, and greatest impactful possibility for bringing this energy of the youth for the growth of the nation. That is why I believe that youth should be supported in entrepreneurship, and not just youth in the cities, but also youth in tier 2, tier 3 cities. For example, Mehsana, where I come from, and also even in small places, solving local problems by the local youth with technology is going to bring a big change in the journey of India for the year 2047. डेफिनेटली सर टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो यू आर ऑलरेडी द टेक्नो सेवी पर्सन एंड टेक्नोक्रेट्स वी कैन से टेक्नोलॉजी में आपका बहुत ही अच्छा योगदान है एंड यू वेरी वेल नो हाउ टू यूज दैट टेक्नोलॉजी इन एग्जीक्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हाउ इफेक्टिवली गवर्नमेंट इज यूजिंग एंड हाउ व्हाट्स योर अप्रोच फॉर दैट? कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी क्यों बोल रहे हो? तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें टेक्नोलॉजी मदद करती है. अगर एक पैर से खड़े होने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं वो काम करूँगा. लेकिन जब तक ऐसी एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमको टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड में हमको एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वो आज के दिन में टेक्नोलॉजी की मदद से होगा. अगर अपनी काम टेक्नोलॉजी से बनती है तो क्यों ना उसका उपयोग किया जाए. और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन है, जो सालों तक नहीं सॉल्व कर पाए, वो टेक्नोलॉजी ने अपने को मदद किया है उसको अचीव करने के लिए. फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की कितनी सारी स्कीम्स है, सही आदमी को सही टाइम पे पहुँचे, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है बहुत सालों से. आधार है, जनधन मॉडल है, और मोबाइल बैंकिंग के साथ जो गवर्नमेंट ने ये सब स्कीम लाई है, तो अभी आधार बेस्ड ट्रांसफ़र की वजह से जो भी लाभ है सीधा जो फार्मर्स को मिलता है, लेडीज़ को मिलता है, स्टूडेंट्स को मिलता है. तो गवर्नमेंट में बहुत सालों से जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी, अब डिजिटल की वजह से हो रहा है. दूसरा मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना है. इसमें सभी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है. एक आम नागरिक भी, एक सामान्य आदमी भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उसका 10 लाख की इंश्योरेंस मिल रहा है. ये कैसे पॉसिबल है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, नेशनल डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से उन सब की लिंकेज होती है, कार्ड फटाफट इशू हो जाता है. वो कोई हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे उसकी वेरिफिकेशन जल्दी हो जाती है, उसको इमीडिएटली दाखिल किया जाता है और कैशलेस ट्रीटमेंट 10 लाख तक कोई भी
सेवा वो ले सकता है, वो आम आदमी के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उसको अपनी लाइफ की एक बड़ा गारंटी मिल जाती है, तो वो आगे बहुत बढ़ सकता है। तो ऐसे छोटी-छोटी जो बीमारियाँ भी उनको बहुत पीछे कर देता है आर्थिक परिस्थिति में, तो उसमें से हमको आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी अगर मदद कर रहा है, तो इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी हमको बिल्ड करना चाहिए। सबको अवेलेबल हो, हर लैंग्वेज में अवेलेबल हो, हर रीजन के लोगों को अवेलेबल हो और हर माध्यम से अवेलेबल हो। जब मैं इंक्लूसिविटी की बात करता हूँ, हमको इवन ब्लाइंड पर्सन्स का भी ध्यान रखना चाहिए, दिव्यांग पर्सन्स का भी ध्यान रखना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी एक कोई हाई-फाई चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी एक उपयोगी वस्तु है, उस तरीके से उसको हम लेंगे, तो हम सही रिज़ल्ट ला पाएँगे। तो टेक्नोलॉजी मतलब लेटेस्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी मतलब सही युक्ति है, सही जो तरीका है, जो हमारे रिज़ल्ट तक पहुँचाए। तो उस तरीके से अगर टेक्नोलॉजी को देखें, तो वो बहुत बड़ा रिज़ल्ट लाएगा। सही बात है सर। टेक्नोलॉजी यदि फॉर एग्जांपल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें, तो आपका तो पास्ट में भी एजुकेशन डिवीज़न डिपार्टमेंट से काफ़ी बड़ा योगदान आपने दिया है, पर्टिकुलरली एजुकेशन सेक्टर में। तो एडटेक भी काफ़ी इमर्जिंग है सेक्टर। तो सर आपका एजुकेशंस का टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में सर आपका क्या अभिप्राय है? बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं एजुकेशन सेक्टर में, स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक। अब एजुकेशन का मीनिंग ही बदल रहा है। पहले एक सर्टिफिकेट होता होता था तो आप एजुकेटेड माने जाते थे। अब आपको एक्चुअली क्या स्किल आ रहा है, आपको रियली क्या करने को पता चल रहा है, क्या आप रिज़ल्ट ला सकते हो, वो एजुकेटेड गिनता है। सर्टिफिकेट इतना ज़रूरी नहीं है कि आप वो एक कंपल्सरी चीज़ नहीं है। और आप करंटली अभी देखेंगे कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अलग-अलग सोर्सेस से बहुत इनपुट अब मिल रहा है। सो मल्टीपल मेथड से लर्निंग करने से जो लर्नर है, उनकी शिक्षा की जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो ज़्यादा बढ़ता है। वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं, एक ही चीज़ को वो अलग-अलग तरीके से देख पाते हैं और जो चीज़ रिटन में समझा नहीं जा सकता, वो देख के समझ सकते हैं और जो देख के समझा नहीं जा सकता, उसको मॉडल में बना के भी हम समझ सकते हैं। ऐसी हैंड्स ऑन और प्रैक्टिकल लर्निंग, इमर्स लर्निंग और एआर-वीआर की वजह से जो इन्वॉल्वमेंट आती है स्टूडेंट्स की, इससे भी बहुत रिसर्च हुआ है कि वो बहुत इफ़ेक्टिव है। एक बात हुई कैसे पढ़ाई की जा सकती है और उससे टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है। दूसरा है जो रेगुलर स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आज सभी फील्ड में आप देखेंगे नया-नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नई युक्तियाँ आ रही है, न्यू मेथड्स आ रहे हैं। तो उसमें अप टू डेट रहने के लिए एक कंटिन्यूअस स्किलिंग की ज़रूरत है और वो हमको सभी को सब जगह देना है, तो टेक्नोलॉजी ही उसको काम ले सकता है। तो ई-लर्निंग है, ऑनलाइन मेथड्स ऑफ लर्निंग है, ये सब में अभी सब लोग आराम से जुड़ रहे हैं और कोरोना की वजह से ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर एक बहुत बड़ा अडॉप्शन आया। जैसे कि हमने गुजरात में 18 लाख कॉलेज के स्टूडेंट्स और 20,000 टीचर्स, उनका एक साथ ऑनलाइन का प्लेटफ़ॉर्म जब बनाया गया, अब उसकी वजह से लोगों को ब्रिज हो गया कि हमको फ़िज़िकल भी बैरियर्स होगा, टाइमिंग का बैरियर्स होगा, तो भी हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल लर्निंग के माध्यम से हम अपनी नॉलेज की जो जर्नी है, उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। सो कंटिन्यूअस लर्निंग के ऊपर एक बार भी दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी हमारी समाज में सब लोग हम फेस कर रहे हैं। एक तो है कि हम कंटिन्यूअसली एक चीज़ को फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी यूथ जो हैं, जो रील्स में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, वो रियल वर्ल्ड में कैसे आएँ और रियल स्किल्स कैसे सीखें, उसके लिए भी हमको डिजिटल मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। तो अपॉर्च्युनिटी बहुत है, लेकिन उसको सही तरीके से यूज़ करने की जवाबदारी और ज़िम्मेदारी भी हम हमारे के सभी के हाथ में है। Thank you. Really inspiring and motivating knowledge that you have shared on the technology and how we can do the effective knowledge on technology. सर आईएएस के पहले आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी आपने जो हिसाब से काम किया है। सर पहले के जो फिनटेक की बात करें और अभी जो हिसाब से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और फिनटेक जो हिसाब से इवॉल्व हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट डू यू थिंक फिनटेक का फ्यूचर कैसे रहेगा और व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स? अगर हम एक टेक्नोलॉजी की बात करें, जो इंडिया के 140 करोड़ नागरिक को जीवन बदल सकता है, वो फ़िनटेक है। फ़िनटेक में बहुत सारी एवोल्यूशंस हुआ है। फ़िनटेक शब्द भी अभी रिसेंटली आया है, उसके पहले ही टेक्नोलॉजी फाइनेंस में चल ही रहा है। मैं जब रिज़र्व बैंक में था, तब आरटीजीएस सिस्टम इम्प्लीमेंट हुई थी, जो अभी पूरा हमारी बैंकिंग सिस्टम के लिए एक
कोर सॉल्यूशन बन गया है। और उस टाइम पे क्लियरिंग हाउस में फिजिकल चेक्स आते थे। बॉम्बे में एनसीसी नरीमन पॉइंट बोलते हैं, वहाँ क्लियरिंग हाउस में एक दिन में 6.5 से 7 लाख चेक्स आते थे और पूरी बॉम्बे की सेटलमेंट वहाँ होती थी। ये 20 साल पहले की एक कहानी है। उसके बाद इमेज बेस्ड क्लियरिंग आया तो फिजिकल चेक्स नहीं ज़रूर पड़ेगा, फिर सॉफ्ट कॉपी में ही वो क्लियरेंस चलती थी। जब आरटीजीएस आया तो ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ने लगे, एनईएफटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, फिर एनईएफटी की टाइमिंग इतना बढ़ा दिया गया कि वो 24 आवर्स हुआ। उसके बाद आईएमपीएस आ गया कि आपको इमीडिएट पेमेंट्स भी मिलने लगे। इतना सब करने के बाद फिर लगता है कि अब आगे क्या जाएगा। तो और इसके ऊपर अभी फिनटेक ये जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है, इसके बेस पे बहुत सारे स्टार्टअप्स आने लगे जो पेमेंट गेटवेज और सिस्टम्स में इम्प्लीमेंटेशन में आए। तो इसमें बहुत सारे रेगुलर जो प्लेयर्स हैं, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, पेमेंट एग्रीगेटर्स, ये सब के साथ डेवलपमेंट जब हुआ तो मेरी भी एक जर्नी रही कि ये जो अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो गांव के आदमी को कैसे मिलेगा, एक ट्राइबल बच्चे को कैसे मिलेगा। तो मैं जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर था तो तब स्कॉलरशिप पहुंचाने के लिए हमने बायोमेट्रिक कार्ड्स इशू करने का एक प्रोजेक्ट लिया था और लगभग 25,000 ट्राइबल बच्चों को उनके स्कॉलरशिप्स मिलने के लिए फ़ोटो के साथ आईडी कार्ड इशू करने का डेबिट कार्ड इशू करने का एक प्रोजेक्ट लिया था। वो काफ़ी उस टाइम पे इम्पैक्टफुल रहा क्योंकि बहुत सारी पैसा जो है पिल्फरेज होती थी, जो सही पर्सन है उनको नहीं पहुंचता था और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी कि मेरी स्कॉलरशिप आ गई है, आ गई है तो सेफ़ है कि नहीं है। तो ये उस टाइम की एक प्रोजेक्ट थी। उसके बाद 2015 में डिजिटल विलेज का प्रोजेक्ट किया था, जिसमें एक विलेज अगर 100% डिजिटाइज़ होगा, तो वो कैसा रहेगा। तो यहाँ गुजरात में अकोदरा करके गाँव है जो हिम्मतनगर के पास है। वहाँ पे 100% डिजिटाइज़ेशन का 2015 में लॉन्च किया था हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के हाथ से। ये प्रोजेक्ट करने के बाद आपको एक पार्ले जी बिस्किट भी लेना है, तो आप एक एसएमएस करके अपनी पेमेंट दुकानदार को दे सकते हैं। ऐसे पूरी गाँव में वाईफ़ाई, टेली हेल्थ, स्किलिंग डेवलपमेंट, साइबर किटली, विमेन के लिए एक पढ़ने बैठने का व्यवस्था, स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्था, डेयरी का 100% डिजिटाइजेशन, ये सब करके एक मॉडल गाँव उस टाइम पे बनाया गया था। और 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन किया था, तो ये एक ही विलेज थी पूरे इंडिया में जो इसका ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा क्योंकि वो लोग 100% ऑलरेडी डिजिटल थे। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्या उपयोग हो सकता है, ये हमने आंखों के सामने देखा। उसके बाद मैं जब सूरत स्मार्ट सिटी में काम कर रहा था, तब पूरे शहर के लिए वन सिटी वन कार्ड का प्रोजेक्ट लाया गया कि आप घर पे निकलो तो 10 कार्ड लेके नहीं जाना पड़े। एक ही कार्ड में आपकी डेबिट कार्ड, आपकी बैंक अकाउंट, आपका प्रॉपर्टी का डिटेल्स, आपका इवन आप बस में जा रहे हो, तो बस में टैप इन करके टैप आउट करने की टिकट भी उसी कार्ड के अंदर आ जाएगा। ये पूरा सुविधा के साथ ये इम्प्लीमेंट किया गया था और ये भी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन के साथ एक कोलैबोरेशन किया था। इसको ओपन लूप कार्ड बोलते हैं। ये इम्प्लीमेंट करने से आप एक ही कार्ड से पूरे शहर में घूम सकते हो। अभी जो टेक्नोलॉजी फिनटेक में इम्प्रूवमेंट्स चल रहा है, इसमें हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की लोन मिल रहा है, बाय नाउ पे लेटर की स्कीम्स ऑलरेडी आ गए हैं और बीच में क्रेडिट कार्ड बेस्ड स्पेंडिंग के लिए माइक्रेड जैसे स्टार्टअप्स भी आए हैं। ये सब जो एलिट पब्लिक के लिए काम कर रहा था। अभी जो फिनटेक करंटली आ रहा है, इसमें अभी लेटेस्ट मैंने देखा है अहमदाबाद से एक इंस्टा क्लास करके स्टार्टअप लॉन्च हुआ है, जो सैलरी डे के लिए लोन्स देता है एम्प्लॉइज़ और कंपनीज़ के साथ मिलके। तो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 50,000 का लोन एक झटके में 30 सेकंड, 2 मिनट में मिल जाना एक बड़ा चीज़ होता है। सेम वे स्टूडेंट लोन्स में भी जब पेरेंट्स भर नहीं पाते हैं, तो ये फिनटेक जो है लोन देते हैं और फिर उसको ईएमआईज़ में रिकवर करते हैं। अब आगे धंधे की बात करें तो ट्रेड फाइनेंस जो है 90 डेज़ तक की ट्रेड फाइनेंस की प्लेटफ़ॉर्म्स भी अभी आ रहे हैं। इसमें एनबीएफसीज़ का भी रोल बढ़ रहा है कि जो वो लोग बैकएंड में इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो नियो बैंक्स की पूरी कैटेगरी जो है फिनटेक के माध्यम से क्रिएट हो गया है। तो ये सब एक बाजू चल रहा है तो इसमें आम आदमी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है और सामान्य आदमी भी आज इंडिया ऐसी परिस्थिति में है कि आपको 100% डिजिटल में यूरोप में या यूएसए में नहीं गुजार सकते हैं, लेकिन 100% डिजिटल में इंडिया में पक्का हम गुजार सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ।
तो ये हमारी सबके लिए बड़ा गर्व की बात है कि एज अ कंट्री हमारी जितनी भी डाइवर्सिटी है, हमारी एजुकेशनल डिफरेंसेस है, क्लास डिफरेंसेस है, लोकेशनल डिफरेंसेस है, इसके बावजूद हम ये अचीव कर पाए। हमारी सबकी एक वेरी ट्रू। रेसिस्टेंस और नेशनल कैरेक्टर को एक बताता है कि हम कितने फॉरवर्ड लुकिंग हैं। सही बात है, जैसे इंडिया को वैसे भी देखा गया है कि विविधता में एकता है, तो फिनटेक और ये पर्टिकुलरली जो भी इवैल्यूएशनरी चीज़ें हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको उसको ही हम कोरिलेट कर सकते हैं। सर साथ-साथ में फिनटेक में कुछ आगे की भी जब हम बात करें, तो गुजरात में गिफ्ट सिटी है। राइट, उसमें आईएफएससीए करके एक अथॉरिटी है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स का अथॉरिटी है। अब इंडिया राइजिंग की हम बात करें तो ग्लोबल टू इंडिया पहले से चल रहा है, 1991 से चल रहा है। तो इंडिया टू ग्लोबल की अब दौर शुरू हो गया है। सो ग्लोबल टू इंडिया, इंडिया टू ग्लोबल, इसमें फाइनेंशियल फ्लोस और इन्वेस्टमेंट्स बहुत आने वाले हैं और बाहर जाने वाले भी हैं। इसको फैसिलिटेट करने के लिए जो गिफ्ट सिटी में स्पेशल सेंटर जो बनाया गया है, आईएफएससी अथॉरिटी है, ये पूरा रेगुलेट करता है और इसको प्रमोट भी कर रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। आज के दिन में 200 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो गिफ्ट सिटी में रजिस्टर हुए हैं। इतने सारे फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन स्टार्टअप्स में आने वाला है। तो फिनटेक में ये सब का भी बड़ा रोल है कि गैप अभी यहाँ ऐसा दिख रहा है कि फिनटेक में जितने भी प्लेयर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, अथॉरिटीज़ हैं और पब्लिक है और इंडस्ट्रीज़ हैं, सब अलग-अलग ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो सभी स्टेक होल्डर्स को कुछ-कुछ प्लेटफ़ॉर्म ऐसी होनी चाहिए जहाँ वो लोग मिलके नया सॉल्यूशंस ढूँढ सके, एक दूसरे को प्लस माइनस को समझ के एक नया मेथड्स क्रिएट कर सके। तो मुझे लगता है कि फिनटेक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी बन जाएगा हमारे कंट्री के लिए। वेरी ट्रू सर, आपने बहुत ही अच्छे से फिनटेक का पूरा जो जर्नी है स्टार्ट कैसे हुआ और उसके बाद अभी क्या सिनेरियो हो, बहुत ही अच्छे से आपने नरेट किया। साथ-साथ में सर एआई की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ कमिंग एंड नाउ ग्रोइंग इनटू द ऑल द सेक्टर। साथ-साथ में साइबर सिक्योरिटी, सो यू आर हाइली इन्वॉल्व्ड एंड यू आर इंटरेस्टेड इन द साइबर सिक्योरिटी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सर तो एआई और साइबर सिक्योरिटी हाउ इट इज़ इवॉल्विंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसमें सर आपका क्या ओपिनियन है? ये दोनों नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज बोल सकते हैं। ये सब जो सामान्य आदमी के लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है। साइबर सिक्योरिटी जब हम सोचते हैं, हम बड़ा चीज़ ऐसे सोचते हैं कि कोई हैकर होगा, वो कोई सर्वर में हैकिंग करता होगा, ऐसा नहीं है। आज के दिन में आप देखेंगे अभी हमारे रिंगटोन में क्या आ रहा है कि आप साइबर फ्रॉड से बचो। बचो। इतना ज़रूरी बन गया है क्योंकि जो सिस्टम पब्लिक के अच्छे के लिए लाए गए हैं, उसी को मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। हुँ। तो सावचेत रहना और सतर्क रहना हमारी ड्यूटी बन रही है। इसमें सामान्य आदमी को हम जल्दी कैसे सिखाएँ? अब हम रोड पे जाते हैं, तो हमको पता है कि रोड पे फुटपाथ पे वॉक करनी चाहिए। रोड कार क्रॉस करने के पहले दोनों बाजू देखना चाहिए। ऐसे डिजिटल में भी कुछ एटिक्वेट्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमको हमेशा फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पासवर्ड्स सब जगह अलग-अलग होनी चाहिए, उसको चेंज करते रहना चाहिए, ओटीपी किसी को शेयर करना नहीं चाहिए। ये सबको जल्दी हम बात पहुँचे, ख़ास करके बच्चों के लिए, क्योंकि यंग एज में बच्चों के लिए हाथ में मोबाइल मिल जाता है। मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम की जो मिनिमम एज है, वो 13 इयर्स की होती है, लेकिन 8 साल से बच्चे इंस्टाग्राम में देख देख रहे रहे हैं। हैं, रील्स देख रहे हैं। ये उनको जल्दी एक एक्सपोज़र दे रहा है जो उनकी मैच्योरिटी लेवल के साथ मैच नहीं हो रहा है। ऐसे साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी एक मेंटालिटी है। जैसे सिक्योरिटी एक मेंटालिटी है कि क्या आप सिक्योर फ़ील करते हो? फ़ील करने के लिए आप क्या करते हो? रात को घर बंद कर देते हो, हुँ, लाइट्स को चला के रखते हो या सिक्योरिटी गार्ड रखते हो या एक डॉग रखते हैं। ऐसे राइट, हम जो अपनी सिक्योरिटी, फिज़िकल सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं और कुछ इमरजेंसी है तो हम 100 में डायल करें। कुछ और अकस्मात हो गया और कुछ है, एक्सीडेंट है तो हम 108 में डायल करें। ये सब जो हमारी माइंडसेट में बिल्ड हो गया है, तो इसको हम साइबर सिक्योरिटी में भी सेम मॉडल को कैसे लाएँ? कि हम बिन ज़रूरी ऐप्स कैसे ना इंस्टॉल करें, ऑथराइज़्ड ऐप्स को कहाँ से यूज़ करें। कोई भी ऐप कोई परमिशन माँग रहा है तो उसको हमें देना है, नहीं देना है। आँख बंद करके यस, यस करना नहीं है। ये सब चीज़ें हैं, हमको सोचना शुरू कर देना चाहिए और ख़ास करके जो यंग जनरेशन है, नए जनरेशन है जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको हमें सिखाना चाहिए। गुड टच, बैड टच की बात हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो गुड बिहेवियर एंड बैड बिहेवियर ऑनलाइन और ट्रस्ट किसको करना, नहीं करना है।
और ऑनलाइन में जितने भी इंफॉर्मेशन आती है वो सब ट्रस्टेबल नहीं है, इसको मान के हमें चलना चाहिए। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे बहुत सारी अफवाहें फैलती थी, ये सब इसीलिए कि हम जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको मान ले रहे हैं कि वो सच है। क्रॉस चेक करना चाहिए। अभी फैक्ट चेकिंग के लिए भी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी वेबसाइट जारी की है, बहुत वॉलंटियर्स ग्रुप हैं, ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फैक्ट का चेकिंग करके बोल रहे हैं। सो इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन के भी हमको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि हम किस पे डील कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी बड़े लोगों का बात नहीं है, टेक्नोलॉजी के लोगों का बात नहीं है, कंपनियों की बात नहीं है, हर आम आदमी की बात है, हर बहन की बात है, हर बच्चे की बात है। तो घर घर तक साइबर सिक्योरिटी की एक डिस्कशन, डिनर कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और एआई की जब हम बात करें तो एआई एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है और हर महीना उसका बहुत अपडेट्स आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी जो स्पीड में ग्रो कर रहा है उसका टॉप लाइन बहुत हाई चल रहा है और हमारी अडॉप्शन रेट बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे इम्पैक्ट इसमें आने वाला है, ये पक्की बात है। तो हमारी सोसाइटी को तैयार करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए वो हमको अभी से सोचना चाहिए और एआई की बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए। अगेन जब मैंने पहले भी बोला कि हमारे लिए सही टेक्नोलॉजी क्या है, तो एआई में भी हमारे लिए सही टेक्नोलॉजी क्या है, सही मेथोडोलॉजी क्या है और एआई के अंदर कौन सी डेटा से क्या ट्रेन हुई है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेबिलिटी ऑफ एआई। तो एक्सप्लेनेबल एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई ब्लैक बॉक्स के साथ हम नहीं डील कर रहे हैं कि वो अंदर से जो भी दे रहा है वो सब सच नहीं होता है, उसमें गलत भी हो सकता है। और कंप्यूटर तो एक डम मशीन ही है, राइट। वो कभी ह्यूमंस को पार नहीं कर सकता है, कुछ चीज़ों में तो बिल्कुल पार ही नहीं कर सकता है। तो वहाँ तक वो कुछ एक्टिविटीज़ जो दे रहा है वो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट प्रिंसिपल में चलता है। तो हम जो इनपुट दे रहे हैं उसी पे वो हमको मिलने वाला है। तो क्या इनपुट गया है, डिज़ाइन कैसा है, उसके अंदर इंटरकनेक्टिविटी क्या है, ये सब सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट भी इसमें बहुत रेगुलेशंस लाने की ट्राई कर रही है, बातचीत बहुत चल रहा है, लेकिन जल्दी कुछ ये सब में नियंत्रण और एक मॉनिटरिंग रखने की ज़रूरत है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एआई तो हमारे लाइफ में जैसे मोबाइल हमारे लाइफ में इंटीग्रेट हो गया है, इंटरनेट हमारे लाइफ में इंटीग्रेट हो गया है, फिनटेक हमारे लाइफ में इंटीग्रेट हो गया है, ऐसे एआई भी हमारे लाइफ में इंटीग्रेट हो ही गया है। हमको अभी पता नहीं चल रहा है कि कितना इंटीग्रेट हुआ है। तो हमको इसके बारे में भी बहुत सोचना चाहिए और उसको अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कई बार पूछते हैं कि क्या एआई हमारी जॉब्स को ले जाएगी? ऐसी एक बहुत बड़ी बात चल रही है। तो बहुत सारे विवाद चले, फिर फाइनली अंत में ये निकला कि एआई आपका जॉब नहीं लेके जाएगा, लेकिन जो बंदा एआई यूज़ करता है वो आपका जॉब लेके लेके जाएगा। जाएगा, वेरी तो ट्रू। यूज़ करना तो सबके हाथ में है हुँ, और अभी इंटरनेट तो सबको अवेलेबल है। दुनिया में सबसे सस्ता डेटा हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में। वेरी ट्रू। ये जब मिल रहा है मौका तो हमारी जो यूथ हैं उनको इसको हुँ। अच्छा मौका यूज़ करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सही बात है। एआई की आपने बहुत ही अच्छे से बात किया कि एआई को हम इफ़ेक्टिवली कितना यूज़ कर पा रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगा और एफिशिएंसी भी वर्क पर्पज़ में हम यूज़ कर पाएँगे। सो वेरी एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग आंसर दैट हैज़ बीन गिवन बाय यू सर। सर स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात करें तो क्या लग रहा है आपको वेदर इंडिया कैन बी द स्टार्टअप नेशन और नॉट? ये स्टार्टअप तो इंडिया में बहुत चल रहा है, लेकिन स्टार्टअप नेशन बनेगा क्या? एक बड़ा सवाल सबके मन में है। तो मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं बन सकता? सदियों से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा जो कॉन्ट्रिब्यूशंस है, साइंटिफिक कॉन्ट्रिब्यूशंस है, ज़ीरो वर्ल्ड को दिया है इंडियंस ने। तो इनोवेशन हमारे माइंडसेट में पहले से ही है। उसको अभी एक नया फ्रेमवर्क में डालने की बहुत ज़रूरत है। और जब हम स्टार्टअप की बात करें तो वो एक बिजनेस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर हो तो एक अच्छा और सस्टेनेबल स्टार्टअप बन सकती है। तो इंडिया में ज़रूर स्टार्टअप नेशन बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ जो स्टेप्स हैं हमको करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला है कि जब हम वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन हमारे पास होगा तो उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को हम कैसे बढ़ावा दें। अभी हम देखेंगे कि हमारी जो स्कूल सिस्टम है उसमें एक रोट लर्निंग और लिमिटेड थिंकिंग के ऊपर है, उसको जल्दी बदल के हमें क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर लाना चाहिए। और स्कूल लेवल पे ये करने के बाद आइडिया क्रिएटिविटी को बढ़ाने के बाद जब कॉलेज में आते हैं तो वो अपने रिसर्च, अपने इनोवेशन, अपने आइडिया के ऊपर वो लोग काम करें, उसके लिए मदद करना चाहिए। तो उसमें ऑलरेडी गुजरात में अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी जो है उसके अंदर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट या टीम है उनको
2.5 लाख रुपीस तक की सपोर्ट मिलता है, जिसमें वो अपना आइडिया पे काम कर सकते हैं। जब आइडिया बड़ा हो जाता है, प्रोडक्ट आ गई है या आपकी सर्विस चालू हो गई है, आप मार्केट में जा रहे हैं, तो स्केलेबिलिटी के लिए भी ग्रांट है। इसके लिए आई हब गुजरात करके संस्था है, जहाँ पे आपको सृजन ग्रांट का 15 लाख मिल सकता है, और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओर से 30 लाख रुपए का एक स्केलिंग अप ग्रांट भी मिल सकता है। ये तो गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात हो गई। बट हम स्टार्टअप नेशन जब बनाना चाहते हैं, तो हम आज के दिन में वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो वी आर नंबर 3 इन द वर्ल्ड ऑलरेडी। बट नंबर 1 कैसे बने? नंबर 1 का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टार्टअप्स एंड नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग स्टार्टअप्स। और हमारे पास नंबर ऑफ पीपल है। अभी सिर्फ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स को बढ़ाना है। तो स्टार्टअप सीधा नहीं आता है, वो कोई आइडिया से शुरू होता है। तो हम आइडियाज को कैसे बढ़ावा दें? तो इसको एक हम ट्रायंगल के तौर पे माने, तो जो बॉटम ऑफ द ट्रायंगल है उसको हम कैसे बढ़ा सके, ताकि हाइट ऑफ द ट्रायंगल और बड़ा हो सके। तो बॉटम ऑफ द ट्रायंगल अपने को बढ़ाना है, तो आइडिया की बेस बढ़ाना है। तो स्कूल लेवल पे अभी जो स्कूल इनोवेशन काउंसिल आई है, इसके माध्यम से बहुत जोर से हमको इनोवेशन के ऊपर और आइडिया क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ऐसी जब बात होती है, तो सिर्फ बड़े शहर नहीं, मेट्रोस नहीं, सिटीज़ नहीं, छोटे-छोटे शहर, छोटे-छोटे गाँव में भी, स्कूल्स में भी ये क्रिएटिविटी की बात होनी चाहिए। तो जब इसकी बात आती है, तो शहर से आगे जाके डिस्ट्रिक्ट की बात करनी पड़ेगी। तो आप स्टार्टअप डिस्ट्रिक्ट बनाएँगे, तो हम स्टार्टअप नेशन बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया में 780 जो है 780 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। उसका एक मॉडल हमने मेहसाणा में किया है, जहाँ पे तालुका लेवल पे, विलेज लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी इनोवेशन के पाइपलाइन है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं और इवन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, उनको सबको मिला के एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसको हमने अमृत मेहसाणा स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन में ये काम लिया है। और इसके साथ कॉर्पोरेट्स को भी जोड़ के सीएसआर और कॉर्पोरेट्स की प्रॉब्लम्स को ऊपर काम करने का एक प्लेटफॉर्म भी खड़ा किया है। और ये सब कामगिरी को बढ़ाने के लिए हमने नमो आई हब, एक इनोवेशन हब का भी स्टार्टअप किया है। तो मैं मानता हूँ कि अगर हम स्टार्टअप डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल बनाएं, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक डिस्ट्रिक्ट को हम वेंचर स्टूडियो के तौर पे देखें कि आइडिया टू मार्केट एंड फंडिंग पूरी सपोर्ट एक जिला में, एक डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, तो स्टार्टअप डिस्ट्रिक्ट बनेगा। और स्टार्टअप डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो जरूर से स्टार्टअप इंडिया बनेगा। तो हम एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं, 780 डिस्ट्रिक्ट्स का अगर ये स्टूडियो मॉडल को अपना सकते हैं, तो 780x हमारी ग्रोथ होगी, 80x हमारी इनोवेशन होगी, और 780x हमारी स्टार्टअप की ग्रोथ भी होगी। तो स्वाभाविक है कि हम स्टार्टअप नेशन बन ही जाएंगे। सही बात है सर, आपने बहुत ही अच्छे से नैरेट किया कि हाउ आइडिया टू मार्केट एंड मार्केट टू फंडिंग हम कर सकते हैं, और ये जो पूरी चेन है उसमें जस्ट मेट्रो और मेट्रोपॉलिटन सिटी को कवर करते हुए साथ में जो रूरल एरिया है और विलेजेस में भी हम उसको कैसे स्प्रेड करें, और इंडिया के 780 डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा एयर हम स्टार्टअप की कैसे सर्कुलेट करें, तो उसके लिए एग्जीक्यूशन लेवल पे काफ़ी अच्छा एक प्रायोजन है। सर साथ-साथ में जैसे हम बात करें कि इंडिया का यूथ बहुत ही पॉपुलेटेड है, मोर देन 60-65% ऑफ पीपल आर बिलो द एज ऑफ 35। सर अभी यूथ के पास आइडिया है, तो सर आइडिया को कैसे एनकैश करें? उसकी कैसे जर्नी आप उसको नैरेट करोगे? ये जो आइडिया टू मार्केट की जर्नी की हम बात करें, तो सबसे पहले ये चाहिए कि वो आइडिया का समाज में कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के साथ जुड़ना चाहिए। समाज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना हर एक बिजनेस का दायित्व है। तो ये आइडिया पे जब हम काम करते हैं, तो पहले तो उनको वो आइडिया पे एक नॉवेल्टी क्या है, नया तरीका क्या है, न्यू सॉल्यूशन क्या है, उसको ढूंढना चाहिए। वो ढूंढने के बाद तुरंत उसको पेटेंट करना चाहिए। पैटर्न की इम्पोर्टेंस हम लोग नहीं समझते हैं। जब भी हमारे आइडिया को कोई पब्लिक में प्रेजेंट करना है, कोई आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग में पब्लिश करना है, कोई ओपन एरिया में पब्लिक में सामने प्रेजेंट करना है, तो वो पेटेंट को करके उसके बाद ही करना चाहिए। या तो फिर उसके जब पब्लिक नॉलेज में आ जाती है, तो उसकी पेटेंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो पेटेंट करने के बाद, वो आइडिया को प्रोटेक्ट करने के बाद, उसको एक प्रोटोटाइप बनाना है। और प्रोटोटाइप बनाने के बाद उसको मार्केट तक ले जाने के लिए जितने भी इनक्यूबेटर्स हैं, आजू-बाजू के कॉलेजेस में हैं, गवर्नमेंट सपोर्टेड हैं, और जो स्टेट लेवल भी इनक्यूबेटर्स हैं, वहाँ पे अप्रोच करके वो अपने प्रोजेक्ट को इनक्यूबेट करके आगे बढ़ सकते हैं।
तो सबसे बड़ा मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास आइडिया है और आपका उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है तो उसको पहले पेटेंट करना चाहिए। सही बात है सर। साथ-साथ में यदि आपकी होल जर्नी को देखा जाए तो इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग टू मैनी यूथ एज़ वेल। सर स्पेसिफिकली यदि यूपीएससी एस्पायरेंट जो भी यूथ है उसको आप एड्रेस कैसे करोगे? उनके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज आप ये पॉडकास्ट से देना चाहोगे? देखिए, मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था आईएएस के लिए, तो तब अब्दुल कलाम साहब की एक बुक आई थी, इंडिया विज़न 2020। तो तब ये बुक हम पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि क्या सही में भारत 2020 में डेवलप हो जाएगा? ये एक डाउट था सबके मन में, लेकिन इच्छा थी कि हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। बट अब हम 2020 क्रॉस कर चुके हैं, 25 में आ चुके हैं, तो हमने जो ड्रीम लेके निकले थे उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, अच्छी बातें हुई है। हम बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव कर चुके हैं एज़ अ नेशन, बट अभी भी और अपॉर्च्युनिटी बाकी है और भी बहुत काम करना बाकी है। तो तो इस तरीके से अभी जो हम इंडिया की 2047 की बात करते हैं, देयर इज़ नो डाउट कि इंडिया डेवलप होगा कि होगा ही होगा। बस अपने को डिसाइड करना है कि हमारी क्या रोल रहेगी इसमें। तो जो भी एस्पिरेंट हैं जो आईएएस के लिए करना चाहते हैं, आप ये सोचिए कि आपको इस जर्नी में क्या कंट्रीब्यूट करना है। आप आईएएस बनने के बाद कैसे उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ में रह के, गवर्नमेंट की प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके आप कैसे समाज में अच्छाइयाँ करना चाहते हैं। और इसमें बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं। पुराने ज़माने का जो काम है वो बहुत डिफरेंट है, अभी जो नया ज़माने में चाहिए वो बहुत डिफरेंट है। तो अभी पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी की इम्पैक्ट आ चुकी है और प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में परफॉर्मेंस की ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और पब्लिक में चल जाएगा। अभी लोगों की अपेक्षाओं पूरा करने के लिए हमको टीम वर्क, टेक्नोलॉजी के साथ एकदम प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस की बात करनी पड़ती है। तो एक डेडिकेशन और विज़न के साथ ही ये काम हो सकता है। ये एक आम नौकरी नहीं है कि जहाँ पे आपको 9 टू 5 का करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड है। एक समुदाय में, एक समाज में आपको एक अलग दायित्व मिलता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपॉर्च्युनिटी भी मिलती है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ बड़ा कुछ कर सको, यूथ के लिए कुछ कर सको, विमेन के लिए कुछ कर सको, डेवलपमेंट के लिए, लाइवलीहुड के लिए। तो बड़ा अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ मिल रहा है। जैसे स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ी प्लेटफ़ॉर्म है, वैसे आईएएस भी अभी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे अभी भी चल रहा है। तो अगर आपका दिल और दिमाग इसमें इंटरेस्टेड है, जुड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट की प्लेटफ़ॉर्म में रह के आपको करना है तो मोस्ट वेलकम है। ये सबसे बड़ा मंच प्रदान करता है कि आप गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट और स्टेटस और सिंबल के साथ-साथ लोगों के साथ जुड़ के भी काम करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक इट ऑफर्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वेरी ट्रू। और सही में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ जो पावर इट कम्स ऑलवेज़ विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दिस इज़ द डेजिग्नेशंस ऑलवेज़ रिस्पेक्टेबल बट इट कम विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट। और आपने सही बोला कि ये 9 टू 5 वाली जॉब नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 24/7 आपको अवेलेबल रहना होता है लोगों के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए। और सर यूथ को आप एड्रेस कैसे करना चाहोगे? आजकल का जो यूथ है उसमें आप क्या देख रहे हो कि उनमें क्वालिटीज़ की कमी है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने ऑब्ज़र्व किया हो? आजकल की यूथ में सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ कि उनको रियल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आना है और उनके ऊपर जो खुद के ऊपर एक्सपेक्टेशंस है, वो बहुत कम है। वो अपने पोटेंशियल को भी डाउन प्ले कर रहे हैं। दे कैन डू वंडर्स, दे कैन डू ग्रेट थिंग्स, बट वो अपनी एम जो है वो बहुत ही कम रख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आज की दुनिया में जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है, इंडिया में जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रहा है, पूरी दुनिया जब इंडिया को मुड़ के देख रहा है और जब आम अ, जो इंडियन है वो इसी यूथ के अंदर भरा हुआ है, तो उनको ये अपॉर्च्युनिटी को जाने नहीं देना चाहिए। वो जल्दी ये अपॉर्च्युनिटी को समझें, उसके अंदर अपना दायित्व बनाने का डिसीज़न लें और अपने गोल के ऊपर काम करें। खुद के ऊपर वो अपना काम करेंगे, अपने डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे तो कंट्री के लिए तो ऑटोमेटिक डेफ़िनेटली हो हो ही ही जाएगा। जाएगा। तो वो अपने ऊपर ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्टेशन रखें, एक्सेलेंस के ऊपर एक गोल बना के लाइफ़ जिएँ, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।
Very true, sir. You have very nicely narrated like what are the qualities that today's youth में होनी चाहिए और उन लोगों को क्या expectation society भी अभी रख रही है youth के ऊपर. Sir, अभी मेरे पास आपके लिए थोड़ा सा surprise round है where I will अच्छा, ask the quick questions and you have to answer me the very quickly. What's your regrets in life? क्या लग रहा है आपको? Regret जैसा कुछ life में अभी तक कुछ हुआ हो? कोई incident या? छोटे मोटे रिग्रेट्स हैं बट बाय एंड लार्ज मैंने जो मुझे करना है वो मैंने मेहनत से किया है, कर रहा हूँ। इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ बड़ा रिग्रेट्स नहीं है। अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो आई विल बी हैप्पी टू डू द सेम थिंग्स अगेन। वेरी ट्रू। और सर आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? मेरा फेवरेट टाइम पास है रीडिंग, ओके। मल्टीपल सोर्सेस, बुक्स, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, किस ऑल टाइप टाइम। की बुक्स आप ज़्यादा रीड करना चाहते मोस्टली नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड न्यू आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स या तो थोड़ा करंट हैपनिंग्स के बारे में, ये सब मुझे इंटरेस्टिंग हैं? योर लगता रोल मॉडल? है। एपीजे अब्दुल कलाम। ओके। 3 मिस्टेक्स ऑफ योर लाइफ? एनी मिस्टेक? इफ नॉट 3, मिस्टेक्स देयर इज़ नो मिस्टेक मे बी नहीं, 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 मिस्टेक तो होता ही है ना। योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? ट्रैवल डेस्टिनेशन एनी हिल स्टेशन, ओके। एनी अपॉर्चुनिटी दैट यू ऑलवेज क्रेव फॉर? ट्रैवल अब्रॉड, ट्रैवल अब्रॉड। एनी थिंग्स दैट यू लाइक मोर? फूड। एनी अपॉर्चुनिटी दैट यू मिस्ड? I missed a lot of opportunities, Uh, but I always keep trying for more wha- opportunities. what are the 3 qualities that you think that I have enough of that? Patience, consistency, and hard work. What are the 3 qualities that you think that I should really focus or evolve over the period of time for that 3 qualities? Self-discipline, focus on the task, and methodical approach. Whom do you think that he or she is my ideal entrepreneur? I don't have a single person, but मेरे मन में जो आइडियल एंटरप्रेन्योर है वो यूनिकॉर्न जब क्रिएट करना चाहता है तो वो इम्पैक्ट यूनिकॉर्न बनाएगा तो वो मेरे लिए आइडियल एंटरप्रेन्योर है। $1 बिलियन वैल्यूएशन की बात जब हम करते हैं तो इंडिया के 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लिए अगर कोई कुछ सॉल्यूशन बना सकता है तो मेरे लिए वो आइडियल एंटरप्रेन्योर है। 2030 में आप आपको कहाँ तक सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? व्हाट्स योर विजन फॉर 2030? माय विजन फॉर 2030 इज टू डू मच ग्रेटर थिंग्स फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। उनकी पावर को हम आगे कैसे बढ़ाएं और इंडिया की स्ट्रेंथ जो एमएसएमईज में है उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो स्टार्टअप, एमएसएमईज एंड यूथ, और यूथ मतलब उसमें विमेन, चिल्ड्रन, उन सब के लिए भी अगर हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ दैट विल बी द आइडियल गोल फॉर मी इन 2030। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को आप 1 लाइन में क्या एड्रेस देना चाहोगे? आप किसी से कम नहीं है। वाओ! द फेवरेट बुक दैट यू कैन रेफर टू एनीवन? बहुत सारा है, अभी जो रिसेंटली मुझे जो सही लग रहा है वो है रीवर्क करके है, रीवर्क। जो ओके। अभी वर्क के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है उसके बारे में है। काफ़ी बेसिक है बट अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती है। योर फेवरेट मूवी दैट यू ऑलवेज टेल पीपल टू वॉच और समथिंग लाइक दैट? बाहुबली। बाहुबली। Okay. How do you find Gujarat? Being a South Indian and coming to the different culture, how do you think that Gujarat is for you, or just you want to go back to your native? तमिलनाडु मेरा जन्मभूमि है बट गुजरात मेरा कर्मभूमि है। गुजरात आपड़ी से। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको रीडिंग का भी हैबिट है और यू रीड लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ें वर्सटाइल थिंग्स आप पढ़ते हो। सर गुजराती लिटरेचर की बात करें तो उसमें से यूथ को क्या प्रेरणा मिलती है और यूथ को आप कैसे एड्रेस करना चाहोगे? बहुत सारी जो पंक्तियाँ मैंने जो सुनी है, उसमें बहुत ही एक इंस्पायरिंग वर्ड्स है ઝવેરચંદ મેઘાણી की, जिसमें वो गाते हैं कि ओ राज मने लाग्यो कसुम्बीनु रंग। अगर हम इसका सोचें तो उस ज़माने में उन्होंने सामान्य आदमी का भी देशभक्ति को जगाने के लिए शब्द को यूज़ किया था। तो घर-घर में ये गूंज उठी है। तो आज के दिन में अगर मैं सोचूँ तो आज के दिन में कसुम्बीनु रंग क्या है? तो उस टाइम पे स्वतंत्रता थी, स्वदेशी था, ये सब कसुम्बीनु रंग था। अभी मैं मानता हूँ कि इंडिया को अगर स्टार्टअप नेशन बनाना है तो हमारे लिए कसुम्बीनु रंग इनोवेशन है, कसुम्बीनु रंग स्टार्टअप है, कसुम्बीनु रंग यूथ है। इन सबको पावर में साथ में लेके कैसे आगे बढ़े। तो कसुम्बीनु रंग
की एक्सप्रेशन आज ये यूथ की पावर को लाने में हो सकता है। तो आज का कश्मीर रंग इनोवेशन और स्टार्टअप है। What are the challenges that you find in Gujarat? कोई चैलेंज नहीं है, अंदर से दोनों स्टेट मुझे तो सेम ही लगता है। आस्था है, रीति रिवाज है, कल्चर है, बड़ों का आदर है, धंधा व्यवसाय है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, साइज है, पॉपुलेशन है। मुझे तो दोनों लगभग सिमिलर ही लगता है। ऊपर से अलग लगता है, अंदर से तो सब सेम ही लगता है। यहाँ पे भी मंदिर में जाते हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं, यहाँ पे उत्तरायण मनाते हैं, वहाँ पोंगल बोलते हैं। दिवाली दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और नवरात्रि इम्पोर्टेंट है। यहाँ गरबा करते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। फ़र्क इतना ऊपर का ही है, अंदर की आस्था तो सब सेम ही है। Your favorite festival? नवरात्रि। Okay. Thank you so much, sir, joining with us and giving your insightful discussions, inputs for the youth, female entrepreneurs, startup, how the things would go and upcoming era. Really, sir, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जुड़ने के लिए for this podcast. Thank you once again. थैंक यू।